just going to start my class. In our last class, what we have studied a bundle of things, and we are going to focus it. Okay, the cellular transportation that we have studied, and in the last, what I'm going to do, I'm just going to make the same concept map that I have prepared in the last time. Okay, what were we doing? Basically, we were discussing about the cellular transportation. Okay, this is cellular transportation. Basically, this is cellular transportation, and this is cellular transportation third unit, or I'm just going to mention here. This is our lesson number 3, और ये हमारा जो यूनिट है दैट्स फॉर GC एंड ऑब्लिक IGC oblique Adexel. Okay, lesson number 3 of the unit of cellular transportation. But in our last class, what we have studied a bundle of things. Okay, you can just go through about these concept maps. कल क्या आपकी क्लास के अंदर आपको चीज़ें समझ में आ गई थी? डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड उसके अलावा हमने आपको क्या बात बताई थी? हमने बताया था आपके पास ऑस्मोसिस, उनकी सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस दैट वी हैव आल्सो स्टडीड. नाउ बेटा व्हाट वी आर गोइंग टू डू, basically we are just going to discuss about the bulk transportation. That was our topic. Okay, the bulk transportation. About bulk transportation, okay, we have studied about few things like हम लोगों ने जो बात की थी, पहले हम उस तरफ आ जाते हैं. हमने क्या बात की थी? We have studied about diffusion. Okay, what do you mean by diffusion? The flow of molecules from higher to lower concentration. It does not need energy, it does not need any kind of partial permeable membrane. इसको किसी membrane की और इसकी अपना energy की ज़रूरत नहीं होती. Then we discussed about osmosis. Okay, osmosis is basically what? Osmosis is also called the diffusion of water molecules from by a partial permeable membrane. This is also called diffusion of water molecule. Osmosis is also called diffusion of water molecules by a partial permeable membrane. ठीक है जी. अब ये हो तो डिफ्यूजन ही रहा है, लेकिन इस डिफ्यूजन के अंदर आपके पास क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व है. ओके, नाउ बेटा, then we have also studied another way of cellular transportation. What was they? I'm just going to hold it up. अब सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारे पास एक और टॉपिक आया था, दैट वाज व्हाट? दैट वाज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, यू मस्ट नो दीज थिंग्स. अगर आपको ये चीज़ें पता है तो इसका मतलब है कि आपने आधा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू GC IGCS एंड एडेक्सल बोर्ड. ठीक है जी. अब ये डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वी हैव स्टडीड अबाउट इट. ठीक है, डिफ्यूजन की भी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं. डिफ्यूजन हमारे पास क्या था? डिफ्यूजन इज दी फ्लो ऑफ particles from higher to lower concentration okay, from higher concentration to lower concentration gradient. And osmosis is also the flow of water molecules. It is specified by the water molecules by a partial permeable membrane. Okay, this is also called the diffusion of water molecules across the partial permeable membrane. But when we talk about the active transport is little bit different as compared to diffusion and osmosis.
Now what's the difference that you can observe here? What kind of difference can you observe here? What are the differences? The differences are, okay, this is the flow of molecule from lower to higher concentration. Okay जी, flow of molecules, ये flow of particles from higher to lower, यही था, ये lower to higher था, है भाई? जाग रहे हैं आप लोग? That is basically from, Lower to yeah, lower to higher. जाग रहे हैं, इसका मतलब जाग रहा है पाकिस्तान। चल मेरे भाई, ठीक है, अपनी दुकान, जाग रहा है पाकिस्तान। वेरी गुड। नाउ बेटा, नाउ this is from lower to higher concentration gradient, ठीक है जी। flow of particle from lower to higher concentration through partial permeable membrane, okay, through partial permeable membrane by the help of, yeah, by using ATP. ATP means energy, okay. By the help of hydrolysis of ATP, they produce the energy, and this energy help uh, this energy help to achieve the target of the active transport. Now just I'm going to change them, their structures, their, I'm just, okay. Now these are the things that you need to understand. These were the three main components that we need to understand. But most importantly, I'm just going to change the color just to identify that these all are the different mechanisms to one another. But one of the important topic that we need to understand, number one, that is diffusion. There are different methods that we have understood yet. First of all, the diffusion. Then we have understood that what we have understood about osmosis. Then we have understood about the process of active transport. Now, what to do, beta? We have to understand this last concept that we have studied. That was what? That was the bulk transportation. Okay, that was the bulk transportation that we need to understand here. And today is the topic of the bulk transportation that we need to understand. आज हमारा काम ही जो बल्क ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम करना है, ठीक है। सेल के अंदर जो बल्क ट्रांसपोर्ट होती है, ये जो चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एक साथ जो है ट्रांसपोर्ट की जा रही होती है, हम उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। द बल्क ट्रांसपोर्टेशन, व्हेन यू टॉक अबाउट द बल्क ट्रांसपोर्टेशन, ओके। नाउ द वन मोर थिंग, हमने यहाँ पे इसको एक जैसे पैटर्न के अंदर द बल्क ट्रांसपोर्टेशन। बेटा व्हेन यू टॉक अबाउट द बल्क ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली दिस इज द क्लास जिसके अंदर आपको ट्रांसपोर्ट, ये जो सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन है बेटा, ये है क्या, इसके अंदर आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या आती है? ये आती है कि आपको एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सेल में कोई चीज़ या तो इन हो रही है या आउट हो रही है। इसके अंदर बल्क ट्रांसपोर्टेशन के अंदर व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट the two types that were the topic of discussion uh, in our last class, and we will go in detail inshallah. What are the topic of discussion? Number one, the bulk transportation के अंदर भी अगर हम लोग ये बात की थी, हमने bulk transportation के अंदर अगर बात की थी तो that was कि हमारे पास इसकी दो टाइप्स थी, ठीक है। What are the bulk transportation? One is called endocytosis, ठीक है। One is called endocytosis, and the second one was that we have understood, हम लोगों ने the next one जो हमने बात की थी, that was exocytosis, the endocytosis and exocytosis. For the bulk transportation, we have also concluded one more point. We use one of the suffix which is called cytosis. Okay,
Now that was the thing. Now look, just fully focus here. Cytosis, endocytosis, exocytosis. Now this is the suffix that we use to understand the concept of bulk transportation. Okay, endocytosis and exocytosis. Now my dear students, you need to understand and focus the term. ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सी टर्म है that you have also understood that endo. What's the meaning of endo? Okay, endocytosis. When you talk about the endocytosis, you must think about what's the meaning of endo. And when you talk about the exocytosis, then you must about the exo. Cytosis तो हमने ये So चीज. it must be like something like endo means take in Yes, very good. Endo means and take in. exo means take out. Very good, beta. Endo means take in and exo means take out. Means so in case of transportation, how can we use that term? How can we use that term? We can use that term like this way. कि आप इस तरह से यहाँ पे इसको बता सकते हो कि आप इस तरह से यहाँ पे इसको बता सकते हो कि endo means you are absorb the cell is getting the bulk quantity of the material inside, and exo means the cell is getting out the bulk quantity of the material. Now the point of discussion that we need to understand here, this is very much important to understand. I'm just going to show my whiteboard to draw that structure. That is very much important. uh, यहाँ पे हम आपके साथ अपना जो वाइट बोर्ड है इसको शेयर करते हैं और इसको हम यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होता क्या है. लेट्स सपोज दिस इज अ सेल. Sir, Yumna left the class. ओके, शी विल अगेन join the class inshallah. That is figure number 1. Let's suppose this is the cell and there is one of the material XYZ is here. कोई भी एक सॉलिड पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है. दिस इज द सेल एंड एनी सॉलिड पार्टिकल इज हियर. कोई भी सॉलिड पार्टिकल यहाँ पे आपके पास मौजूद है. नाउ आगे की तरफ चलते हैं. व्हाट विल हैपन? सेकेंड स्टेप. नाउ द सेल, this is the cell, will try to make a capturing site. This is called pseudopodia. अब यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि ये आपके पास जो सॉलिड मटेरियल यहाँ मौजूद था, उस सॉलिड मटेरियल को, ठीक है, जो कि कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फूड न्यूट्रिएंट हो सकता है, XYZ. दिस इज द सेल. अब इसने यहाँ पे इस तरह से करके ये दो आपकी जो है ना आउटग्रोथ्स प्रोड्यूस की. इन आउटग्रोथ्स को हम बोलते हैं क्या? सूडोपोडिया. ठीक है, विच इज कॉल्ड सूडोपोडिया. ठीक है, आई विल आल्सो गिव यू द टर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूडोपोडिया? PSEUDO, सूडोपोडिया, PODIA. Okay, beta. Now, what's the meaning of pseudopodia? Because these are the outgrowths of cell membrane. तो ये आपके पास क्या होती है? सेल के अंदर प्रोड्यूस होती रहती है और खत्म भी होती रहती है. When you talk about the pseudopodia, basically the word pseudo means false. पानी डाल. Now, beta, pseudo. What's the meaning of pseudo? Pseudo means होता है false. ठीक है, which is not permanent. Pseudo means false या temporary.
आपके पास जो चीज़ टेम्पररी होती है, जो आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं रुकती, एंड प्लस पोडिया, PODIA, पोडिया, ठीक है। पोडिया मीन्स फीट, सोडोपोडिया, दीज आर दी सोडोपोडिया, like they are making the 2 feet or 2 hands there, which are going to capture that solid particle. This is the solid particle, ठीक है। अब ये पिक्चर नंबर 1 के अंदर मौजूद था, अब ये पिक्चर नंबर 2 के अंदर आपके पास क्या नजर आया कि पिक्चर नंबर 2 के अंदर आपके पास जो नजर आई चीज वो ये थी कि आपके पास इस सेल ने अपने अंदर एक छोटा से आउटग्रोथ्स इसकी सेल मेम्ब्रेन की बनी, और the outgrowths are being formed to capture that solid particle. Now at the other hand, what will happen in the figure number 3? The cell has captured the particle और उसने उसको अपने सेल के अंदर ले चुका है। सेल मेम्ब्रेन ने, the cell membrane has captured the particle. Now that particle is inside the cell. ठीक है, this is the figure number 3. This is the figure number 3. And now after that figure number 3, now look at here. अब ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये अब सेल के अंदर आया। सेल के अंदर मौजूद क्या थे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट वी हैव आल्सो स्टडीड फ्रॉम सेलुलो लाइसोसोम्स। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये आपके, ये फिगर नंबर 4 की बात बता रहा हूँ कि फिगर नंबर 4 में क्या हो रहा है। ओके, अब फिगर नंबर 4 में आपके पास जो ये सॉलिड पार्टिकल जो सेल के अंदर कैप्चर किया गया है, अब इस सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर क्या होंगे? आपके डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स दे विल एक्ट, दे विल एक्ट ऑन। ठीक है, अब ये डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके ऊपर जब एक्ट करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, आपके पास ये जो इंटरनली ये जो आपका सॉलिड पार्टिकल था, इट विल बी हाइड्रोलाइज्ड और डाइजेस्टेड। दिस इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन आल्सो। अब इसमें क्या हुआ? उस पार्टिकल को खा लिया गया। ठीक है, अब इस पार्टिकल को खा लिया गया। नाउ दिस इज योर फिगर नंबर 5। तो पूरी एक स्टोरी आपको बन जाएगी। अब ये फिगर नंबर 5 के अंदर देखिए, वो पार्टिकल हैज बीन हाइड्रोलाइज्ड और डाइजेस्टेड। ठीक है, बट वी नो दैट ड्यूरिंग द डाइजेशन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी अनवांटेड होती हैं, बॉडी के अंदर से बाहर निकाल दी जाती है, या फिर आप कोई भी मटेरियल जो सेल के अंदर मौजूद था, अनवांटेड था, उसको बाहर निकाल रही है। लाइक द मटेरियल, द थिंग दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर दैट पर्टिकुलर बॉडी, जो ये रेड कलर की बॉडी इसके साथ जिसको इसने कैप्चर किया था, डाइजेस्ट किया था, अब क्या होगा? ये इसको बाहर निकाल देगा। अब कैसे बाहर निकालेगा? लाइक इन दिस वे। इसकी आपके जो भी पार्टिकल का अनवांटेड मटेरियल था वो इसके साथ डिफ्यूज होगा, और ये आपके पास ये चीज क्या होगी? बाहर आ जाएगी। गॉट इट? नाउ बेटा, आई एम जस्ट मूविंग अगेन द कॉन्सेप्ट। ओके, इन 6 different pictures. Now, inshallah, you will be capable yourself to understand the concept of phagocytosis and pinocytosis. अब बेटा इसके अंदर आपके पास फेगो, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम एंडोसाइटोसिस की बात कर रहे हैं ना। अब इतना इसके अंदर ये प्रोसेस हुआ। अब आप मुझसे ये भी कह सकते हो कि सर अगर इस सॉलिड की बजाय, अगर ये पार्टिकल अगर कोई लिक्विड होता, कोई लिक्विड अगर पार्टिकल होता, लेट्स सपोज कि अगर ये
लिक्विड अगर मिक्सचर होता, इधर बनाता हूँ कि अगर कोई लिक्विड अगर पार्टिकल होता फिर क्या होता? द सेम थिंग, द सेल विल कैप्चर दैट लिक्विड पार्टिकल, और लिक्विड पार्टिकल इसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता और उस लिक्विड पार्टिकल को अंदर कैप्चर कर लिया जाता। उसको कैप्चर करने के बाद उसके साथ भी वही हशर होता जो कि बाकियों के साथ हुआ। ठीक है, तो कैप्चर करने के बाद यहाँ पे इस शक्ल में मौजूद होता, और इस शक्ल में मौजूद होने के बाद यही आपके पास जो चीज़ है जो लिक्विड पोर्शन के अंदर है, उसको अगर किसी एंजाइम ने यूज़ करना है तो एंजाइम उसको यूज़ करेगा। जिसने एंजाइम ने यूज़ नहीं करना तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है, देखिए जो एंजाइम है इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, अब इसका जो वेस्ट मटेरियल बच गया वो क्या किया जाएगा? वो इस सेल के अंदर से यहाँ पे इस तरीके से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है बेटा जी, नाउ थिंक अबाउट इट, व्हाट इज हैपनिंग है। अब मैं अगर यहाँ पे बहुत गौर से अगर आपको ये बताने की कोशिश करूँ व्हाट इज हैपनिंग है, ठीक है जी, यहाँ तक आपके पास क्या हो रहा था? मटेरियल सॉलिड या लिक्विड फॉर्म के अंदर आपके पास सेल के अंदर आ रहा था। ठीक है जी, मटेरियल आपका सॉलिड या लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या हो रहा था? सेल के अंदर आ रहा था। नाउ दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। This process is called endocytosis, means the bulk quantity of the material is going to take up by the cell. The endocytosis means the cytosis process is occurring or happening inside the cell. ठीक है, चीज इसके अंदर आ रही है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं कहूँ तो मटेरियल को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, और दिस इज कॉल्ड, यस डेफिनेटली राइट, this is called exocytosis, means the material has been removed out. कितनी आसान चीज है ये, कितनी आसान चीज है, बहुत आसान है ना। लेकिन यहाँ पे आपके पास इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की बजाय इसको मजीद और सिंपल करते हैं, मजीद और सिंपल करते हैं भाईजान। नाउ द सॉलिड पार्ट, आई एम जस्ट फोकसिंग हियर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द पार्ट, this is called phagocytosis. This is called phagocytosis. और ये जो लिक्विड पोर्शन है जहां पे लिक्विड आपके पास सेल के अंदर इन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एंडो, दिस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट? ठीक है जी, अब मैंने आपको क्या कहा, एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स है ना, एक आपका फेगोसाइटोसिस है और एक आपका पिनोसाइटोसिस है। नाउ आई एम अगेन मूविंग टू माय टॉपिक। Now the endocytosis is further divided into two portions. वो two portions कौन कौन से थे हमारे पास? टू पोर्शंस या दो चीज़ें हमारे पास जो थी, दैट वर बी, कि अगर हम यहाँ पे गौर से अगर कोई एक अच्छा सा शेप यहाँ पे ले लें, दैट इज कि हमारे पास चीज़ें जो हमें सामने नज़र आ रही थी वो कौन सी नज़र आ रही थी? वो ये नज़र आ रही ये वो हमारे पास थी, हमारे पास फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू टॉक अबाउट द फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, okay, what you need to understand, this is very much important.
Now the phagocytosis. I'm just concerning about phagocytosis. What's the meaning of phago? Phagocytosis. Phago means होता है eating. This is called cellular eating. Cytosis means cellular. Phagocytosis it is for अपना it is for solids. ये होती है solids के लिए होती है और ये आप eating करते हैं यानी जो सेल है वो किसी solid part को खा रहा होता है. जबकि अगर आप पिनोसाइटोसिस के वाले से बात करते हो तो पिनोसाइटोसिस मीन्स cellular drinking. This is the meaning of these terms. Got it? सेलुलर ड्रिंक हमेशा किस चीज का किया जाता है? लिक्विड का किया जाता है या सॉलिड का किया जाता है? जरा मुझे बताएं. लॉजिक है ना, सेलुलर ईटिंग एंड वर्सेस सेलुलर ईटिंग. Okay, now these are the things that you need to understand. Okay, I'm just going to managing the materials here. Like this is phagocytosis और phagocytosis जो होता है वो किसके अंदर होता है? डेफिनेटली phagocytosis होता है सॉलिड पार्ट्स के अंदर, सॉलिड मटेरियल्स के अंदर. ठीक है. अब ये जो चीज़ थी मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स के अंदर आसान करने की कोशिश की है. लेट्स सपोज दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. व्हाट्स गोइंग ऑन? Exocytotic vessel is diffusing out from the cell. And what is going on? Endocytotic vessel means any body or bag is coming inside of the cell, मतलब इस cell के अंदर आ रहा है. Now what's the difference between phagocytosis and pinocytosis? ठीक है, there is no need to understand the receptor mediated, लेकिन ये भी पढ़ लें, ये आगे जाके आपको सेल एंड डायबिटीज के टॉपिक के अंदर बड़ा हेल्प करने वाला है. फेगोसाइटोसिस के अंदर आपके पास ये सॉलिड पार्टिकल है. पिनोसाइटोसिस के अंदर आपके पास कोई फ्लूइड है, लिक्विड है. जबकि एक और इसकी एक आजकल स्पेशल टाइप हम बच्चों को बताते हैं, दैट इज रिसेप्टर मेडिएटेड. रिसेप्टर मेडिएटेड मींस सेल के ऊपर कोई रिसेप्टर लगा हुआ है, जब तक वो आके उसके साथ अटैच नहीं होगा आपके पास पार्टिकल जो है वो आगे रिलीज नहीं होगा. ठीक है. और इस तरह के आपके पास ये रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस दैट बेसिकली हैपेंस इन द नर्व सेल. नर्व सेल के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं साइनेप्टिक वेजल में, प्री साइनेप्टिक वेजल टू पोस्ट साइनेप्टिक वेजल के अंदर. ठीक है. अब हमारे पास हमारे सेल के अंदर जो ग्लूकोज जा रहा होता है बाय द हेल्प ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन क्या करता है? वो सेल के डिफरेंट रिसेप्टर्स पर आके अटैच होता है और अटैच होने के बाद आपके पास ये सेल जो है उसकी मेम्ब्रेन इनसाइड एक फोल्ड बना लेती है और चीज को अंदर की तरफ ले लेती है. इज दैट क्लियर? आसान है बेटा? Yes, sir. Okay. Now you need to focus what we have studied. We have studied about the exocytosis and endocytosis. ठीक है. एक्सोसाइटोसिस के अंदर आपके पास चीज़ जो मटेरियल है वो डाइजेस्ट के बाद अनवांटेड फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर कुछ आपके प्रोटीन्स हैं या एंजाइम्स हैं जो कि बाहर जाके काम करते हैं, उनको बाहर एक जो प्रोसेस होता है जो सेल के बाहर जा रहा होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस. Endocytosis means the phagocytosis or pinocytosis or receptor mediated endocytosis. What will happen that कि यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जो मटेरियल है, जो सॉलिड पार्टिकल है, वो अगर सेल में आएगा, दिस प्रोसेस कॉल्ड phagocytosis. Why? Because phago means cellular eating and eating always happen with the solid parts. Pino means drinking, to drink something. Okay, cytosis means cellular. This is the cellular drinking because cell is drink the substance or drink हमेशा कौन सा होता है? फ्लूइड की फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है, या कोई फ्लूइडेटेड फॉर्म में होता है. लेकिन रिसेप्टर मेडिएटेड के अंदर क्या होता है? दे आर सर्टेन की एंड लॉक सिस्टम जैसे काम करता है ना, तो इसका जो इसके सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो चैनल्स होते हैं, वहाँ पे आके कोई ना कोई मॉलिक्यूल उनको इंडिकेट करता है और उस इंडिकेशन के बाद वो समझते हैं कि भाई नाउ दिस इज द टाइम टू इनफोल्ड, और इनफोल्ड करके वो मटेरियल को अपने साथ बॉडी के अंदर ले लें. ठीक है. फेगोसाइटोसिस इज वेरी मच कॉमन इन द फेगोसाइट्स जो कि हमने वाइट ब्लड सेल्स के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है. इसके अलावा आपके पास जो बैक्टीरिया अमीबा वगैरह है, दे ईट द फूड बाय द हेल्प ऑफ फेगोसाइट्स. पिनोसाइट इज वेरी मच कॉमन. ठीक है. लेट्स सपोज द मटेरियल दैट वी यूज्ड अप, और कोई भी सेल जो स्पेशली जो कि फेगोसाइटिक ही नेचर है, अगर वो लिक्विड को अगर ले रहा है, दिस इज कॉल्ड पिनोसाइट. और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस हमारे पास हार्मोन्स का आप चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ पे आप पढ़ोगे कि पेप्टाइड हार्मोन्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं. वो
रिसेप्टर मेडिएटेड पे करते हैं। इसके साथ साथ आपके पास जो इंसुलिन है, इंसुलिन, हाउ डज इंसुलिन वर्क? इंसुलिन अटैच ऑन द रिसेप्टर्स, मींस दीज आर दी लॉक्स, और उस लॉक के जो चाबी है वो उसके क्या है, अपना जो रिक्वायर्ड आपके पास मटेरियल है वो यहाँ पे आके अटैच होंगे, फिर ये सेल के अंदर इसको ले लेंगे। और यही प्रोसेस जो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस आप इम्यूनिटी के चैप्टर के अंदर भी आप रीड आउट कर रहे होंगे। नाउ दिस इज ऑल अबाउट मी। इज देयर एनी क्वेश्चन? आई एम हियर एंड योर 80% सिलेबस हैज बीन कवर्ड ऑफ यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा? यूनिट नंबर 3 का 80% सिलेबस हो गया। जस्ट वी नीड वन मोर लेक्चर टू सॉल्व आउट द पास्ट पेपर क्वेश्चंस एंड देयर पैटर्न्स। हमारे पास नेक्स्ट के अंदर हमारे सिर्फ वो होगा और हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। स्पीड सही जा रही है बेटा मेरी? Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से बेटर बेसिकली हमें करना क्या, हमें 2 दफ़ा हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, इसको वर्क ऑन, we will work on what? Work on okay, thank you very much. I'm just going to upload that video on my YouTube channel. अगर आपसे कोई पॉइंट रह गया